Good morning, students. Good morning, students. Today I am going to teach you English literature, lesson 9, A Tiger in the House. Okay, this lesson has been written by Ruskin Bond. Yani author of this lesson is Ruskin Bond. Grandfather finds a tiny tiger cub in the forest and brings him home. Grandmother calls him Timothy and brings him up like a human child. Timothy is playful and naughty. His companions are Toto, the monkey, a puppy, and other members of the household. ओके यानी जो ग्रैंडफादर हैं एक छोटा सा चीते का बच्चा जंगल से लेकर घर आते हैं और जो दादी हैं उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं, ठीक है, और उसको टिमोथी बोलती हैं। टिमोथी एक बहुत नटखट होता है, खुशमिजाज होता है, खेलता है, और उसके साथी होते हैं टोटो, मंकी, पपी एंड बहुत सारे मेंबर्स घर के जो हैं वो उसके साथी होते हैं। ओके, टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा। One day, when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. Grandfather picked him up and brought him home. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. Okay, at first the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook, Mahmood. But the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. Okay, in this stanza, the author says that देहरा यानी देहरादून के नज़दीक तराई के जंगलों में दादाजी को टिमोशी एक शेर का छोटा बच्चा मिला। एक दिन जब दादाजी अपने समूह से कुछ दूरी पर जंगली रास्ते पर टहल रहे थे, उन्हें बरगद के पेड़ की उलझी हुई जड़ों में छिपा एक 18 इंच लंबा शेर का बच्चा मिला। दादाजी ने उसे उठाया और घर ले आए। उन्होंने समूह के दूसरे लोगों से शिकार के मामले में श्रेष्ठता हासिल कर ली, चाहे वह जीवित प्राणी की हो या मृत प्राणी की हो। एट फर्स्ट यानी पहले तो शेर के बच्चे को, जिसका दादी ने टिमोथी नाम रखा था, महमूद रसोइयों के द्वारा पूरी तरह बोतल के दूध पर जीवित रखा गया, लेकिन दूध उसके लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक रहा और उस कच्चे भेड़ के मांस और मछली के जिगर के तेल के सहारे तथा फिर बाद में कबूतरों और खरगोशों वाले अधिक ललचाने वाले आहार को देकर पाला गया। ओके, Timothy was provided with two companions, Toto, the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtain if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. At first, Timothy appeared to be quite afraid of puppy. Okay. Puppy. And then climb up the curtain. Timothy lost his temper. A small mongrel puppy found on the road by grandfather. At first,
Timothy appeared to be quite afraid of puppy and darted back with a spring. It came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. And in this stanza, the author says that लेखक कहते हैं कि टिमोथी को दो साथी मिले थे, यानी टिमोथी के दो साथी थे, एक तो टोटो और एक बंदर, जो कि इतना साहसी था कि छोटे शेर की पूंछ को खींचकर पर्दों पर चढ़ जाता। यदि टिमोथी को गुस्सा आता तो वो दूसरे साथी एक हाइब्रिड पिल्ला था जो कि दादाजी को सड़क पर मिला था। ठीक है, पहले तो टिमोथी पिल्ले से इतना अधिक डरता था, उसके नज़दीक आने पर वह झट से कूद कर पीछे हट जाता। वह पिल्ले पर अपने बड़े पंजे से अस्त व्यस्त घसीटे मार देता, फिर सुरक्षित दूरी पर लौट जाता। आखिर में उसने पिल्ले को अपनी पीठ पर रेंगने और आराम करने की अनुमति दे दी थी। ओके, नेक्स्ट स्टैंजा। वन ऑफ Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to the live with grandfather, I became one of the tiger's favorites, with a crafty look in his glittering eyes and his body crouching. He would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. He was by the time the size of a full-grown retriever, and when I took him out for walk, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself. Please turn over. Okay. Make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. Okay, यानी in this stanza the author says that टिमोथी के पसंदीदा मनोरंजनों में एक यह था कि उसके साथ खेलने वालों के पीछे पीछे अकड़कर चलता था, और वो इसलिए जब मैं दादाजी के पास रहने के लिए आया तो मैं भी शेर को पसंद हो गया, यानी शेर मुझे भी पसंद करने लग गया, और अपनी आंखों में कलात्मक चमक लिए शरीर को झुकाए वह रेंग कर मेरे पास आता और अचानक मेरे पैरों को घसीटते हुए, मारते हुए, अपनी पीठ के बल लौटते हुए मेरे टखनों को काटने के बहाने करता था जब मैं उसे लात से भगाने की कोशिश करता। इस समय वह शिकार पकड़ने के पूरे आकार वाला जानवर हो गया था। जब मैं इसे घुमाने बाहर ले जाता तो लोग हमारे लिए चौड़ा रास्ता छोड़ देते थे। जब इसे जंजीर में खींचना मुश्किल हो गया था, मुझे इसके साथ जाने में दिक्कत होने लगी थी, और घर में इसकी पसंदीदा जगह ड्राइंग रूम था। वही एक बहुत बड़ा सोफ़ा पर बड़ी शान से आराम करता था। इसे वहाँ से उतारने वाले की तरफ गुर्राता था, यानी इसको सोफा बहुत पसंद था, सोफे पे बैठ जाता था। टिमोथी हैड क्लीन, प्लीज टर्न ओवर। टिमोथी हैड clean habits and would scrub his face with his paws, actually like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. Okay, यानी टिमोथी की जो आदतें थी साफ़ सुथरी थी। अपने चेहरे को वह बिल्ली की तरह पंजों से घिसता था। रात को वह रसोइये के कमरे में ही सोता था। सुबह सुबह उसके द्वारा कमरे से बाहर लाने पर वह खुशी महसूस करता था। ओके, एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रादर डेंजरस. Grandfather decides to transfer him to zoo. 6 months later, grandfather pays Timothy as a visit. Timothy is happy to see grandfather, or is he
यानी क्या होता है कि टिमोथी जो है बड़ा हो जाता है और वो है फ्रेंडली तो बहुत कम होता है, लेकिन ख़तरनाक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसलिए दादाजी उसे जो है जू में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं। जू में भेजने का निर्णय ले लेते हैं। 6 महीने बाद जब ग्रैंडफादर टिमोथी को देखने जाते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं कि टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर को देखकर टिमोथी बहुत खुश हो जाता है। और इज ही क्या वह खुश होता है? वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर prophetic manners, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his cloth and shoes. Okay, cloth and shoes. Of course, it never come to that. But when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. But out for a walk with me, he would try to steal away a cat of someone's pet dog. Sometimes at night we would hear frangine cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often, and finally when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intents, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं इन दिनों दादी जी ने भविष्यवाणी के तरीके से कहा कि हम टिमोथी महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ पाएंगे और रसोइयों का उसके जूतों और कपड़ों के अलावा वहाँ कोई सबूत नहीं होगा। ओके, ऑफ कोर्स यानी वास्तव में निस्संदेह ऐसा कभी देखने में नहीं आया, लेकिन जब टिमोथी 6 माह का था तब उसमें विशेष बदलाव आने लगा था। वह धीरे धीरे दोस्ताना कम होने लगा था और ख़तरनाक ज़्यादा होने लगा था। जब वह घूमने मेरे साथ बाहर जाता तो किसी के कुत्ते या किसी की बिल्ली के पीछे चोरी छिपे अकड़कर चलता, वह उसे दबोचने की कोशिश करता था। रात को कई बार हम मुर्गों के बाड़े में उन्मुक्त कुक्कुड़ की आवाज़ सुनते और सुबह बरामदे में सभी और पंख फैले हुए मिलते। टिमोथी को अधिकतर जंजीर से बांधना पड़ता था। आखिरकार जब उसने घर में महमूद के पीछे पीछे अकड़कर चलना शुरू कर दिया तो उसके इरादे खलनायकों जैसे लगते थे, विलेन जैसे लगते थे, और दादाजी ने उसे चिड़ियाघर में भेजने का निर्णय ले लिया था। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। दादाजी ने उसे चिड़ियाघर में भेजने का निर्णय ले लिया था। Reserving a first class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift as a well-fed and fairly civilized tiger. About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when I returned to Dehradun. Okay, यानी in this stanza, author says that दादाजी और टिमोथी के लिए प्रथम श्रेणी का कक्ष आरक्षित पाकर कोई भी उनके साथ उस कक्ष में यात्रा करने को तैयार नहीं था। ठीक है, दादाजी उसे लखनऊ ले गए और लखनऊ में चिड़ियाघर अधिकारी उस फले फूले सभ्य दिखने वाले शेर को देखकर फूले न समाये। ओके, यानी लगभग 6 महीने बाद जब दादा व दादी रिश्तेदारों से मिलने लखनऊ गए तो दादाजी को चिड़ियाघर में टिमोथी को देखने जाने का मौका मिला। वह कैसे फल फूल रहा था, मैं उनके साथ वहाँ न था। देहरादून लौटने पर मुझे इसके बारे में
सब कुछ पता लग गया था। अराइविंग एट द जू ग्रैंडफादर मेड state for the particular case in which Timothy had been interned. The tiger was there, crouched in a corner, fully grown and with a magnificent striped coat. Okay, यानी चिड़ियाघर पहुंचने पर दादाजी सीधे उस पिंजरे तक गए जहां टिमोथी रह रहा था। शेर वहां था, पूरा बूढ़ा हुआ और शानदार धारीदार बालों वाला एक कोने में झुका हुआ था। ओके, Hello Timothy, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his hand. Grandfather stroked the tiger's forehead and tickled his ears, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hand. But every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. Okay, in this stanza the author says that author कहते हैं कि हेलो टिमोथी, दादाजी ने कहा अपने बाजू पिंजरे की सलाखों में डाल दो। यानी दादाजी ने हेलो टिमोथी कहते हुए अपनी जो हाथ हैं, जो बाजू हैं, उसके पिंजरे में डाल दी। शेर सलाखों की तरफ बढ़ा और दादाजी के दोनों हाथ अपने सिर पर फेरने लगे। शेर सलाखों की तरफ बढ़ा और दादाजी को दोनों हाथ अपना सिर पर फेरने दिए। दादाजी ने शेर का माथा थपथपाया और कान सहलाए। जब वह गुर्राया तो उसके मुंह पर हल्के से मारा और उसे शांत करने का पूरा तरीका था। ओके, उसने दादाजी के हाथ चाटे और जब अगले पिंजरे वाला तेंदुआ उसकी तरफ गुर्राया तो वह उछलकर उसी की ओर चला गया। दादाजी ने लात से तेंदुए को डराकर दूर किया और शेर फिर उसके हाथों को चाटने के लिए आ गया, लेकिन बार बार तेंदुआ उसकी तरफ गुर्राता। अंत में वह कोने में छिपकर बैठ गया। उस मिलन को देखकर काफ़ी संख्या में लोग वहाँ जुट गए। ओके, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और फिर वह एक रखवाला वह भीड़ को चीरता हुआ आया और दादाजी से पूछा कि वो क्या कर रहे थे। ओके, वो क्या कर रहे थे। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर, वर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago? आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, सेड द सरप्राइज कीपर। प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। Okay, why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, दादाजी ने कहा। क्या तुम 6 महीने पहले यहाँ नहीं थे जब मैंने इसे चिड़ियाघर को दिया था? मैं यहाँ लंबे समय से नहीं हूँ। आश्चर्यचकित होकर जो जू कीपर था उसने बताया कि मैं यहाँ नहीं था। ओके, और मैं जो है यहाँ लंबे समय से नहीं हूँ, कृपया अपनी बातचीत जारी रखो। परंतु मैं इसको, यानी वो कह रहा है, जो जू का रखवाला है बता रहा है कि बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पे नहीं था और इसे छूने का साहस कभी नहीं कर पाया हूँ। यह हमेशा बुरे स्वभाव का रहा है। यानी ये जो है हमेशा बुरे स्वभाव का रहा है, बुरी आदतों का रहा है। ठीक है, तुम इसे किसी दूसरी जगह क्यों नहीं रखते हो और तुम इसे ले जाकर दूसरी जगह क्यों नहीं रखते हो? दादाजी ने सुझाव दिया कि वो तेंदुआ इसे डराता है। मैं इसके बारे में जाकर अत्यधिक मिलूँगा। अत्यधिक जो बातें हैं मैं तुम्हें बता दूंगा।
इसके बारे में, ठीक है। एंड grandfather went to search of superintendent of the zoo but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. He had been stalking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. Okay. यानी इन दिस स्टैंजा द ऑथर सेज दैट दादाजी अधीक्षक को ढूंढने चल दिए, लेकिन पता चला कि वो जल्दी घर चले गए हैं। फिर कुछ समय चिड़ियाघर में घूमते हुए टिमोथी को अलविदा कहने पिंजरे तक गए। अंधेरा होना शुरू हो गया। वे टिमोथी को 5 मिनटों से थपथपाते रहे, 5 मिनटों तक थपथपाते रहे और एक दूसरा रखवाला जो जू कीपर था सतर्कता के साथ उनका निरीक्षण करता हुआ मिला। ओके, दादाजी ने उसे पहचान लिया था, जो वही था जब टिमोथी चिड़ियाघर पहली बार आया था। ओके, यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केस अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लिपर्ड? बट सर, आई स्टम्बर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर. I know, said grandfather. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. Okay, I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. Died? Exclaimed grandfather. Yes, sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hills. This tiger was trapped in the hills only last month, and he is very dangerous. Okay, यानी तुम मुझे जानते हो, दादाजी ने कहा, तुम टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं रखते? इस मूर्ख तेंदुए से दूर रखो। लेकिन श्रीमान जी, जू कीपर चिल्लाया। लेकिन श्रीमान जी, रखवाला हकलाया, यह आपका शेर टिमोथी नहीं है। मैं जानता हूँ, दादाजी ने कहा, मैं मानता हूँ, और यह अधिक समय तक मेरा नहीं है, लेकिन तुम मेरे 1 या 2 सुझाव तो मान सकते हो, ठीक है? मैं तुम्हारे शेर को अच्छी तरह जानता हूँ। रखवाले ने कहा, यानी जू कीपर ने कहा, वह 2 महीने पहले मर गया। दादाजी को आश्चर्य हुआ। हाँ सर, निमोनिया से। इस शेर को तो पहाड़ियों से पिछले माह ही पकड़ा है, और यह बहुत खतरनाक भी है। ओके, ग्रैंडफादर कुड थिंक of nothing to say. The tiger was still licking his arm. With increasing relish, grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. With his face near the tiger's, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. Okay, in the last stanza, author says that कि दादाजी ये सुनने के बाद जब उसने बताया कि वो तो टिमोथी तो मर गया है, इसे हम दूसरा पकड़ कर लाए हैं, तो दादाजी कुछ भी कहने में असमर्थ थे और एकदम दुख से भर गए। शेर अब उसकी बाजू को चाट रहा था और उसे बहुत स्वाद आ रहा था। दादाजी को पिंजरे से बाहर हाथ खींचने में मानो 1 युग लग गया हो। शेर के मुंह के समीप मुंह लाकर धीरे से बुदबुदाए, शुभ रात्रि टिमोथी, गुड नाइट, और रखवाले को यानी जू कीपर को एक तिरस्कृत दृष्टि से देखकर तेजी से चिड़ियाघर से बाहर निकल आए। ओके,
Is that clear, students? Today I am going. Today. Okay, is that clear, student? Thank you. Student, that's it for today. I hope you enjoyed my class. Similarly, you have to do all the questions and examples. All the best.